Today we will discuss electric flux and Gauss theorem. So electric flux phi. Electric flux is nothing but the total electric lines of force passing through or enclosed through a surface. Suppose this is a surface having area A, then how many electric lines of force are enclosed here is called the electric flux passing through this surface. If we incline this surface like this here, then some of the lines will not be able to pass through this surface, as the area of the surface initially it was at parallel to the electric field, and when it is tilted this way, then the electric field and the area has got some angle theta. So electric flux in the first case is EA total, and in the second case the electric flux is E into area along this is A cos theta. So this will be A cos theta. That means we can say, generalize, this flux is nothing but E dot A, that is E A cos theta. So when the area, then this surface will be perpendicular to this, so that time this will be angle 0, or you can say the 90 degree. So theta, that will be 90 degree, because electric field is in this direction, electric field is this way, the area is along to this 0 angle. When this tilted this way and this area becomes, means plane is parallel to the field, means area is 90 degree to the field. So that time theta will be 90 degree, and that time the flux will be 0. So no electric lines of force will enclose or pass through the surface, because the surface is horizontal and means parallel to the electric field. So no line will be passing through the surface, so the flux will be 0. So for flux to be maximum, the area vector should be parallel to the electric field. That means the plane of the surface should be perpendicular to the electric lines of force. So there is a difference between the plane of the surface and area of the surface. So the area is normal to the plane. So that means if the plane is parallel to electric field, that time the area vector will be perpendicular to electric field. When this plane is perpendicular to the field, that time the area vector, this is perpendicular to the field, so area vector is parallel to the electric field. So when the plane is perpendicular to the field, then maximum electric lines of force will pass through it. When the plane is parallel to the field, that time no electric lines of force will be able to pass through the surface, and that's why the flux will be 0 at that time. And in general, the electric flux is nothing but the dot product or scalar product of the electric field and the area vector. But just you can see, ये कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, कितनी है ये? 4 दिखाई हैं, वैसे बहुत सारी हैं इसमें, लेकिन 4 दिखाई हैं. अब यहाँ पर अगर कोई एक सरफेस मैंने लिया, सर्कुलर सरफेस, वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे रखी हुई है, तो जैसे ऐसे रखेंगे तो इसमें से ये क्या होंगे? सारी ही पास होंगी, ये पास हो गई. लेकिन अगर
हम इस सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं ऐसे, यानी इस सरफेस को अगर हम ऐसे टिल्ट करते हैं तो ये इस तरह से दिखाई देगी। इस समय तो एरिया तो इधर ही था ए, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो एरिया जो है वो किसी एंगल पे आ गया है। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं कुछ ही पास इसमें हो पा रही हैं, ये बाहर निकल गई। इसका मतलब डेफिनेटली इसमें जो लाइंस होंगी जो एनक्लोज हो रही हैं या इसमें से पास हो रही हैं वो रिड्यूस हो गई। इसको चाहे हम इधर घुमाएंगे तब भी रिड्यूस हो जाएंगे, इधर घुमाएंगे तब रिड्यूस हो जाएंगे। और जब इसको हम बिल्कुल पैरेलल कर देंगे, जो सामने दिखेगा आपको ऐसे, तो क्या होगा, एक भी लाइन इसमें से पास नहीं होगी। इसका मतलब इस समय फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। इस समय फ्लक्स क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, और यहां पर फ्लक्स क्या था, ई इंटू ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वो सेम है हर जगह। लेकिन यहां पर क्या था, मैक्सिमम फ्लक्स है, यहां पर फ्लक्स रिड्यूस हो गया, और जब इसको करते 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 हम ऐसे कर दिया तो बिल्कुल जीरो हो गया। इसको हम एक एक्टिविटी से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं, जब देखते हैं, कोशिश करते हैं समझाने की। मैं आपको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दिखाना बड़ा मुश्किल है, तो मैं इसको लाइट की रेज के थ्रू दिखाऊंगा। तो उसको अगर आप ध्यान से देखें और शायद आप समझ पाएंगे। जैसे देखिए, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आ रही है, जो सीधे अंदर जा रहे होंगे, यहाँ से निकल के जा रही है, जैसे ये लाइन आ रही है, ऐसे ये सारी यहाँ से आ रही है। क्लियर हो गया। अब मैं इसमें यहाँ पर एक सरफेस ला रहा हूँ, तो ये सरफेस इस समय क्या है, सरफेस कैसे एंगल पे है, 90 डिग्री पे, यानी एरिया क्या है, पैरेलल है। एरिया कहाँ होता है, इस डायरेक्शन में होता है, और इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो इस समय जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यानी और सारी की सारी लाइंस इस एरिया में एनक्लोज हो गई, पास हो रही हैं। अब जैसे ही मैं इस एरिया को टिल्ट करता हूं ऐसे, यानी एंगल चेंज करता हूं, तो आप देखें सामने बोर्ड पर आपको कुछ लाइंस पास होकर दिखाई दे रही है। और जब मैं इसको धीरे 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 इसको बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सामने ले आता हूँ 90 डिग्री पे, तो सारा का सारा जो है वो लाइंस कहाँ पहुंच जाती हैं, बोर्ड पे। इसको यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए सारी लाइन वही हैं, ये देखिए सारी लाइंस हैं वहां पर। और जैसे जैसे इधर करूंगा इसको, तो फ्लक्स जो है वो लीकेज कम होता जाएगा, लॉस कम होते जाएंगे, और सारी की सारी जगह बिल्कुल प्लेन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी एरिया अलोंग द डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। जब प्लेन पैरेलल टू द फील्ड हो जाएगा तो एरिया विल बी एट 90 डिग्री, और इसीलिए cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये फ्लक्स जो है बिल्कुल जीरो होगा इसमें से लिंक, यानी सारे का सारा जो है इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स इसमें से पास बिल्कुल भी नहीं होंगे, सारी सामने चली जाएंगे। देखिए वही कोई स्थिति है। और जैसे जैसे हम इसका एंगल चेंज करते जाएंगे और एरिया का एंगल जीरो होगा, यानी प्लेन का 90 डिग्री हो जाएगा, तो दैट टाइम द ऑल द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल पास थ्रू और विल एनक्लोज टू दिस सरफेस। ये मैंने इसमें आप कह रहे हैं पास थ्रू तो हुई नहीं, इसी में दिख रही, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर इसमें से मैं इसमें होल रख दूं तो ये निकल जाएंगी, लेकिन आपको बताने के लिए कि एरिया के अंदर सारी की सारी इस एरिया में आ गई है, और जैसे जैसे इसको कम करते टिल्ट करते जाएंगे, कुछ इसके एरिया से बाहर निकलती जा रही है। इसका मतलब इसमें फ्लक्स रिड्यूस होता जा रहा है, और जब ये बिल्कुल पैरेलल टू द फील्ड हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के पैरेलल हो जाएगा प्लेन, देन द फ्लक्स विल बिकम जीरो।